Good morning, students. Welcome back in the chapter of how do organisms reproduce. Students, in previous lecture we have talked about the sexual reproduction in flowering plants and pollination. How sexual reproduction is completed in angiospermic plants. Students, now today we are going to discuss about reproduction in human beings. Students, in this topic we will discuss about the reproduction that take place in human being. We have so far discussed so many modes of reproduction in many species. Now we are going to looking an interesting species known as human being. Students, we are so interested to know about the reproduction in human beings. So before going discussion of sexual reproduction in human being, we have to discuss some points that is related to the sexual reproduction in human being. Students, हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग यानी हम जैसे ग्रो करते हैं बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. Students, these changes are result as the puberty. Students, what is puberty? The changes that arise due to the sexual maturation at the age of adolescence, that is known as puberty. This puberty takes place in early teen age. Students, in puberty there are some changes that are noticed in boys and girls. Out of these changes, some changes are common in both boys and girls, like thick hairs grown on armpits and genital areas between the thighs, and their skin becomes oily and they have developed pimple. All these changes are grouped as common in both boys and girls. ये जो changes होते हैं ये both boys और girls में common होते हैं, दोनों के अंदर ही common होते हैं. But some changes are also seen, that is separately in girls and boys. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो गर्ल्स के अंदर होते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज के अंदर होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम गर्ल्स के अंदर चेंजेस की बात करते हैं, देन वी फाइंड दैट ब्रेस्ट साइज Yes, breast size increases with the darkening of skin of nipple at the tip of the breast. Similarly, at this time girls become menstruate. Girls के अंदर menstruation start हो जाता है और we are aware to our body and for conscious for others body. These are the changes that take place in girls. हमने बात किया कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एंड सम चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड दैट दे आर ग्रुप्ड एज कॉमन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. उसमें भी पिंपल्स का डेवलपमेंट होता है, oil skin become oily. So these are the changes. Now if we talk about the changes in boys, so we find that thick hairs on body, thick hairs on body and as well as face, penis enlargement, and similarly development of pimples, oily skin. These are the changes that take place in boys. Yes, students, अब हम अगर बात करते हैं ये जो गर्ल्स और बॉयज के अंदर होने वाले चेंजेस हैं, that do not take place at the same time and at the same age from one person to another person.
ये जो चेंजेस हैं वो क्या हो सकते हैं, दे मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन के अंदर ये चेंजेस पहले स्टार्ट हो सकते हैं, किसी पर्सन के अंदर ये चेंजेस बाद में स्टार्ट हो सकते हैं, और इसके साथ साथ किसी के अंदर ये चेंजेस कम हो सकते हैं और किसी दूसरे पर्सन के अंदर ये चेंजेस क्या हो सकते हैं और ज्यादा हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते और ना ही एग्जैक्ट टाइम में होते हैं। मैंने बताया किसी के अंदर अर्लियर टाइम में स्टार्ट हो जाता है और किसी के अंदर बाद में स्टार्ट होता है। तो ये एग्जैक्ट जो चेंजेस होते हैं दैट डू नॉट टेक प्लेस एट द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट। ओके स्टूडेंट, द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन। स्टूडेंट्स, now a question arises that why sexual maturation take place? Sexual maturation क्यों होता है? Friends, we know that as the complexity increases in organism, they need specialized tissues and organs to perform the specialized function. For this purpose, the changes are going in human beings. जिसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन पार्ट्स का, इन ऑर्गन्स का, या हम बात करें टिश्यूज का, एक स्पेशलाइज्ड रोल होता है, इनका फंक्शन होता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल मैच्योरिटी के अंदर, सेक्सुअल मैच्योरेशन के अंदर इनका जो है वो डेवलपमेंट होता है। यस स्टूडेंट्स, ऑल दीज टाइम पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन दिस in which these changes take place, that is called as adolescence of puberty. Students, how this adolescence of puberty is related to the sexual reproduction? Student, in previous lecture we have talked that flowering plants, so when these germ cells produced by the reproductive system, they have to meet, that is known as fertilization. Now this fertilization may be of two types, either एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपने देखा मेल गैमेट बाहर आता है एंड देन वो स्टिग्मा पर स्टिक होकर के वहां से उसके थ्रू वो क्या करता है, एक के पास जाकर के फर्टिलाइजेशन करता है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा क्या हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन द टू बॉडीज हैव टू ज्वाइन एंड इंटरनली दे सेक्रेट देयर जर्म सेल्स, और इंटरनली इनका फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यस स्टूडेंट्स, अब इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फ्यूजन होता है और फिर जाइगोट बनता है। स्टूडेंट्स, the species that are going involved in sexual reproduction, their state of sexual maturity must be identifiable from the another species. Yes, और यहाँ पर अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटरनल जो है फर्टिलाइजेशन होता है, सो देयर बॉडीज हैव टू ज्वाइन टू ईच अदर एंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल जर्म सेल देयर इज नीड ऑफ a copulating organ that is called as penis, जिसे हम पेनिस के नाम से जानते हैं। Friends, this penis is a copulatory organ which is help to transfer the male germ cell or male gamete to the site of fertilization. Yes, and similarly in mammals, और अगर हम mammals में बात करें तो human females की बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो बेबीज होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, उनका फॉर्मेशन होता है, एंड आफ्टर द बर्थ दे हैव टू ब्रेस्ट फीड। फॉर दिस पर्पसेस द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड फॉर दिस पर्पसेस डेवलपमेंट ऑफ पेनिस आर टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी प्रोसेस। सो अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था कि क्यों इनकी आवश्यकता पड़ती है, मैंने बताया कि इनका एक स्पेशलाइज्ड रोल होता है, इसलिए जो है ये ऑर्गन्स क्या होते हैं कि इनका डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है, जिसे हम एडोलसेंस ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, और इसलिए सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर दैट इज नीडेड। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड हम आज के क्वेश्चनायर पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चनायर
मैंने यस स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आप आसानी से आंसर कर सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी, लिस्ट द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यस थर्ड वन इज व्हाट कॉमन चेंजेस आर नोटिस्ड ऑन सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यस क्या चेंजेस होते हैं इस पर भी हमने डिस्कस किया, इसको भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन किस तरह से शो करता है, मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। स्टूडेंट आई होप यू विल एंजॉय फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी कल बात करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।